Assalamu alaikum students. Good morning. I am going to share the screen. In the previous lecture, we have discussed the concept of offer curve for nation 1 and for nation 2, and we have also analyzed the concept of partial equilibrium analysis and general equilibrium analysis as well. Today we are going to start the next chapter, that is factor endowments and the Heckscher-Ohlin theory. This is very important contribution in the field फैमिली of international trade. सर जी, सर हमने ये नहीं पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस it is no more important, same as वैसे ही है कि prices जो है वो किस तरह इक्विलिब्रियम पे पहुंचती हैं, इसलिए हमें छोड़ दिया बेटा. ओके These are the assumptions of Heckscher-Ohlin model. थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं assumptions का. Two nations, two commodities, two factor of production. Nation 1, nation 2, commodity X and Y, and two factor of production, labor and capital. Both nations use the same technology in production. Commodity X is labor intensive while commodity Y is capital intensive. ये यहाँ पे हमने assume किया है कि जो commodity है X है वो labor intensive commodity है. ये intensive क्या होता है ये अभी हम आज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे से explain कर दूंगा मैं. कमोडिटी एक्स को लेबर इंटेंसिव कह दिया है, कमोडिटी वाई को कैपिटल इंटेंसिव कह दिया अपनी आसानी के लिए. अदरवाइज ऑब्वियसली कमोडिटी है कोई एक, तो वो लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है या कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है. तो हमने अपने आसानी के लिए एक्स कमोडिटी को लेबर इंटेंसिव कह दिया है, जबकि वाई कमोडिटी को जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कह दिया है. Both commodities produced under constant return to scale in both nations. Incomplete specialization in production, both nations. Tastes are equal in both nations. Perfect competition in both nations. And factor market in both nations. There are perfect factor mobility within each nation, but no international factor mobility. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में तो मूव हो सकते हैं, बट देयर इज नो इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी. लेकिन एक नेशन से दूसरे नेशन में मूव नहीं हो सकते. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो टैरिफ, नो एनी obstruction in the way of international trade. All resources are fully employed in both nations. International trade between the two nations is balanced. ये assumptions है इस थ्योरी की जो हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्दर जब हम इनको रिलैक्स करते जाएंगे तो न्यू थ्योरी हम पढ़ते जाएंगे. Before starting the theory, we have to clarify about the some terminology like factor intensity and factor abundance. हमें फैक्टर इंटेंसिटी की डेफिनेशन कंसेप्ट क्लियर करना होगा, देन फैक्टर अबंडेंस का कंसेप्ट डेफिनेशन क्लियर करना होगा, तब हम जो है वो हेक्सचर-ओहलन मॉडल थ्योरम की तरफ जाएंगे. इसी की मदद से उसे डिफाइन करेंगे. First of all, we have to define what is factor intensity. In a world of two commodities X and Y, two factor of production, labor and capital, we can say that commodity Y is capital intensive commodity if capital labor ratio used in the production of Y is greater than the capital labor ratio used in the production of X.
देखो एक्स की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज हो रहे हैं, वाई की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज हो रहे हैं, बट कैपिटल लेबर रेशियो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई is greater than the capital labor ratio used in the production of X. So you can say that Y commodity is capital intensive commodity. आसान अल्फाज में Y की प्रोडक्शन में रिलेटिवली कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए हम उसको कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी बोल रहे हैं। Y की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज हो रहे हैं, X की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज हो रहे हैं, लेकिन Y की प्रोडक्शन में कंपैरेटिवली कैपिटल ज्यादा मिकदार में यूज हो रहा है, इसलिए हम Y को कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी बोलेंगे। इसी तरह अगर X की प्रोडक्शन में ज्यादा लेबर यूज हो रही हो तो हम उसे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी बोलेंगे। We can say that commodity X is labor intensive commodity if labor capital ratio used in the production of X is greater than the labor capital ratio used in the production of Y. दोबारा बोलता हूं कि अगर दो कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं एक्स वाई, एक्स की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज हो रहे हैं, वाई की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज हो रहे हैं, बट द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर used in the production of Y is greater than capital labor ratio used in the production of X. So you can say that commodity Y is a capital intensive commodity. So you can say that commodity Y is capital intensive commodity. क्लियर है बेटा? कोई है किसी को इश्यू तो मेरे से पूछ सकता है। ऐसा नहीं है, बताएं क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर हो गया जी। यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए डायग्राम बनाई गई, आप देख सकते हैं। ये Y प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल लेबर रेशियो आप देख सकते हैं 2/2 कैपिटल लेबर रेशियो है। ये X प्रोड्यूस हो रहा है और कैपिटल लेबर रेशियो है 1/4। So capital labor ratio used in the production of Y is greater than capital labor ratio used in the production of X. So you can say that commodity Y is capital intensive commodity. मतलब Y की प्रोडक्शन में relatively capital ज्यादा यूज हो रहा है। दोबारा मैं आपको बोल देता हूँ, देखें। 1Y प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 कैपिटल एंड 2 लेबर, और 1X प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 1 कैपिटल एंड 4 लेबर। Here you can see that capital labor ratio 2/2 ये 1 बन जाएगी, ये 1/4 बन जाएगी। Capital labor ratio used in the production of Y is greater than the capital labor ratio used in the production of X. So you can say that commodity Y is a capital intensive commodity. इसी तरह इसी एग्जांपल से हम अगर देखें तो लेबर कैपिटल रेशियो कहाँ पे ज्यादा यूज हो रही है, ये देखें। यहाँ पे लेबर कैपिटल रेशियो 1 है और यहाँ पे लेबर Y की प्रोडक्शन में लेबर कैपिटल रेशियो 1 है, X की प्रोडक्शन में लेबर कैपिटल रेशियो 4 है। सो लेबर कैपिटल रेशियो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ X is greater than the labor capital ratio used in the production of Y. So you can say that commodity X is labor intensive commodity. क्योंकि X की प्रोडक्शन में लेबर कैपिटल रेशियो जो है वो ज्यादा यूज हो रही है एज कंपेयर टू लेबर कैपिटल रेशियो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ Y. So you can say that commodity X is labor intensive commodity. जी क्लियर है पॉइंट? ये सारी वही एग्जांपल्स दी है मैंने, एक ही एग्जांपल दे दी है। क्लियर है पॉइंट बेटा? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट है फैक्टर अबंडेंस। इसकी डेफिनेशन दो तरह से हो सकती है, एक इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट और एक इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। According to the definition in terms of physical units, nation 2 is capital abundant nation
if the ratio of total amount of capital to the total amount of labor available in nation 2 is greater than that in nation 1, according to the definition in terms of physical units, we can say that nation 2 is a capital abundant nation if the ratio of total amount of capital to the total amount of labor available in nation 2 is greater than that in nation 1. अगर कैपिटल लेबर रेशियो टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो नेशन 2 में ज्यादा है एज कंपेयर टू नेशन 1, सो हम कह सकते हैं नेशन 2 जो है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है। आसान अल्फाज में अगर नेशन 2 में कंपैरेटिवली कैपिटल ज्यादा मिकदार में मौजूद है, कैपिटल लेबर रेशियो ज्यादा मिकदार में मौजूद है, कैपिटल टू लेबर रेशियो ज्यादा मिकदार में मौजूद है एज कंपेयर टू नेशन 1 टोटल कैपिटल टोटल लेबर रेशियो। सिंपली कि नेशन 2 के पास कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल अबंडेंट नेशन होगी। नेशन 2 के पास कैपिटल ज्यादा मिकदार में कंपैरेटिवली मौजूद है तो वो कैपिटल अबंडेंट नेशन कहलाएगी। नेशन 1 के पास अगर लेबर कंपैरेटिवली ज्यादा मिकदार में मौजूद है तो नेशन 1 जो है वो लेबर अबंडेंट नेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और यूएसए का आप कंपैरिजन कर लें तो पाकिस्तान में अगर देखें तो टोटल अमाउंट ऑफ लेबर टू कैपिटल रेशियो अवेलेबल इन पाकिस्तान इज ग्रेटर देन द total labor to total capital ratio available in USA. So you can say that Pakistan is labor abundant nation. On the other hand, if total capital to total labor ratio available in USA is greater than the total capital to total labor ratio available in Pakistan, then you can say that USA is capital abundant nation. और ऐसा ही है, USA जो है वो capital abundant nation है क्योंकि वहां टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो लेबर अबंडेंट नेशन है। क्यों? क्योंकि टोटल लेबर टू टोटल कैपिटल रेशियो अवेलेबल इन पाकिस्तान इज ग्रेटर देन द टोटल लेबर टू टोटल कैपिटल रेशियो अवेलेबल इन यूएसए। तो सिंपली जिस नेशन में जो फैक्टर ज्यादा मिकदार में मौजूद है इट मीन वो नेशन उसमें अबंडेंस रखती है। डेफिनेशन की तरफ देखें दोबारा, नेशन 2 इज कैपिटल अबंडेंट नेशन इफ द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द टोटल अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल इन नेशन 2 इज ग्रेटर देन दैट इन नेशन 1। नेशन 2 जो है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन कहलाएगी इफ टी के ओवर टी एल टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो अवेलेबल इन नेशन 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम नेशन 1। इसी तरह वी कैन से दैट Nation 1 is labor abundant nation if total amount of labor to the total, if the ratio of total amount of labor to total amount of capital available in nation 1 is greater than that from nation 2। पॉइंट क्लियर होगा थोड़ा सा बेटे? यस सर क्लियर है। दिया करें हैं, बाकी भी जागते रहा करें। ऐसा तो माशाल्लाह पढ़ता है, अच्छा बच्चा है, बाकी भी जागते रहा जी करें। सर आ रही समझ। क्योंकि क्लास में मौजूद हूँ तो मुझे शक्लें देख के चलो अंदाजा हो जाता है कि ये इसको नहीं समझ आ रही है, मैं पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं नजर आ रहे मुझे आप लोग, तो अगर कोई चीज ना समझ आए मुझसे पूछ लिया करें। तो अब इसी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस। ऑब्वियसली अब जिस नेशन में जो फैक्टर ज्यादा मिकदार में मौजूद है उसमें वो अबंडेंस रखता है, तो जो फैक्टर ज्यादा मिकदार में मौजूद है वो सस्ता भी होगा। तो अगर प्राइसेस के लिहाज से डेफिनेशन करेंगे तो उसको थोड़ी सी ऑपोजिट सी बनेगी। मतलब जैसे पाकिस्तान है, मैंने कहा ये पाकिस्तान लेबर अबंडेंट नेशन है, यूएसए जो है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है। हमने उनके फिजिकल यूनिट से अंदाजा फिजिकल यूनिट्स को कंपैरिजन करके बताया है, क्योंकि पाकिस्तान में टोटल लेबर टू टोटल कैपिटल रेशियो ज्यादा है यूएसए से, और यूएसए में टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो ज्यादा है पाकिस्तान से। ये हमने इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स बताया। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस करेंगे तो पाकिस्तान में लेबर सस्ता है,
ज्यादा है तो लेबर सस्ता भी होगा, और यूएसए में जो है वो कैपिटल सस्ता होगा। तो जिस नेशन में जो फैक्टर सस्ता हो वो उसमें अबंडेंस रखता है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस डेफिनेशन करें तो वो इस तरीके से बनेगी। नेशन 2 is capital abundant if the ratio of the rental price of capital to the price of labor time is lower in nation 1 is lower in nation 2 than in nation 1। दोबारा देखें, नेशन 2 को हम कैपिटल अबंडेंस कह सकते हैं if the ratio of rental price of capital to the price of labor time PK over PL is lower in nation 2 than in nation 1। मतलब अगर लेबर की निस्बत कैपिटल सस्ता हो नेशन 2 में एज कंपेयर टू नेशन 2, सॉरी एज कंपेयर टू नेशन 1, सो नेशन 2 इज कैपिटल अबंडेंट नेशन। दोबारा बोलता हूं, अगर नेशन 2 में पी के ओवर पी एल रेशो, मतलब प्राइस ऑफ कैपिटल टू द प्राइस ऑफ लेबर, पी के ओवर पी एल रेशो जो है वो लोअर हो नेशन 2 में एज कंपेयर टू नेशन 1, इट मींस के रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो लोअर है नेशन 2 में। सो यू कैन से दैट नेशन 2 इज कैपिटल अबंडेंट नेशन। इसी तरह यू कैन से दैट नेशन 1 इज लेबर अबंडेंट नेशन if the ratio of price of labor to the price of capital is lower in nation 1 than from nation 2। क्लियर हुआ बेटा? अगर प्राइसेस के लिए आते डेफिनेशन करें थोड़ी सी उसके ऑपोजिट बनेगी, क्योंकि जो फैक्टर ज्यादा मिकदार में फिजिकल यूनिट्स में मौजूद है उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। जी कंफ्यूजन है किसी को तो मुझसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम फैक्टर अबंडेंस को जो है वो डिफाइन करेंगे। फैक्टर अबंडेंस एंड द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फैक्टर अबंडेंस की मदद से हम शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की तरफ आते हैं। देन जो है वो हम हेक्सोगोनल मॉडल को जो है वो डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमने पहले अज्यूम किया है कि दो कमोडिटीज हैं एक्स वाई, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर कैपिटल, और दो नेशन है नेशन 1 नेशन 2। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि नेशन 1 जो है वो लेबर अबंडेंट नेशन है, नेशन 2 अपनी आसानी के लिए, नेशन 2 जो है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है। इसी तरह कमोडिटी एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, कमोडिटी वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। तो फिर इसकी मदद से हम जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ड्रा करते हैं। आप देख सकते हैं जो नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जो नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये देखें आप, वो 70 वाई से स्टार्ट होता है 140 एक्स तक जा रहा है। उसका ज्यादा रुझान एक्स की तरफ है, क्यों है आप बताएंगे? नेशन 1 के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शेप ऐसी क्यों है, कोई बताएगा? सर वो एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है इस वजह से शायद। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे कहा है कि नेशन 1 जो है वो लेबर अबंडेंट नेशन है, नेशन 1 में लेबर ज्यादा मिकदार में मौजूद है, एंड कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। तो नेशन 1 दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही है, एक्स को भी वाई को भी, बिकॉज नेशन 1 हैज हायर टोटल लेबर टू टोटल कैपिटल रेशियो एज कंपेयर टू नेशन 2। इसके पास नेशन 1 के पास टी एल ओवर टी के ये ज्यादा है एज कंपेयर टू नेशन 2, एंड कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। नेशन 1 के पास लेबर ज्यादा है और कमोडिटी एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शेप ऐसे है। इसी तरह नेशन 2 की बात कर लेते हैं, तो उसका झुकाव ज्यादा वाई की तरफ है, तो वाई की ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज नेशन 2 इज कैपिटल अबंडेंट नेशन intensive. एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। मतलब पाकिस्तान जो है वो लेबर अबंडेंट कमोडिटीज आप देख रहे हैं ज्यादा प्रोड्यूस करता है, यूएसए जो है वो कैपिटल अबंडेंट कमोडिटीज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वही सेम चीज है।
Nation 2 is capital abundant nation and commodity Y is capital intensive commodity. Nation 2 में TK over TL ज्यादा है as compared to Nation 1. So Nation 2 जो है वो capital abundant nation है and Y commodity is capital intensive commodity. That's why जो है आप कह सकते हैं कि Nation 2 जो है वो उसकी शेप इस तरीके से बनी है. अब हम हेक्चुअल मॉडल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं. ये हेक्चर और ओहलन 1919 में हेक्चर ने प्रेजेंट किया था, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट ने, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. और फिर 1933 में जो है ओहलन ने जो है उसे प्रेजेंट किया था. और मजीद इसी सेम टॉपिक पे जो है वो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. तो ये दो इकोनॉमिस्ट की कंबाइंड थ्योरी है हेक्चर-ओहलन मॉडल. फर्दर इस पे मजीद भी सैमुअलसन ने भी काम किया, तो हेक्चर-ओहलन सैमुअलसन मॉडल भी आया है, उससे भी सैमुअलसन को भी नोबेल प्राइज मिला है. हेक्चर-ओहलन थ्योरम postulates that a nation will export the commodity. A nation will export the commodity whose production requires the intensive use of relatively abundant or cheap factor, and will import the commodity whose production requires the intensive use of relatively scarce or expensive factor. दोबारा बोलता हूं. According to the हेक्चर-ओहलन model, a nation will export the commodity whose production requires the intensive use of relatively abundant or cheap factor, and will import the commodity whose production requires the intensive use of relatively scarce or expensive factor. मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं आसान अल्फाज में. लेबर अबंडेंट नेशन विल एक्सपोर्ट द लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एंड कैपिटल अबंडेंट नेशन विल एक्सपोर्ट द कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी. हेक्चर-ओहलन थ्योरम के मुताबिक जो लेबर अबंडेंट नेशन है उसको लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, जबकि उसे कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी इंपोर्ट करनी चाहिए. और इसी तरह जो नेशन जो है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है उसको कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए और लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जो है वो इंपोर्ट करनी चाहिए. जो करंट सिनेरियो में हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, एग्जांपल में नेशन 1 जो कि लेबर अबंडेंट नेशन है, तो उसको लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जो कि एक्स है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए, जबकि वाई जो कि कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसको इंपोर्ट करना चाहिए. इसी तरह जो नेशन 2 है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, मतलब वाई को एक्सपोर्ट करना चाहिए और एक्स को इंपोर्ट करना चाहिए. जैसे मैंने पाकिस्तान यूएसए की एग्जांपल दी है. पाकिस्तान इज लेबर अबंडेंट नेशन, तो पाकिस्तान को लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी इंपोर्ट करनी चाहिए. इस तरह यूएसए को कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जो है वो इंपोर्ट करनी चाहिए. डेफिनेशन क्लियर हुई है? मैं दोबारा से बोल देता हूं. A nation will export the commodity whose production requires the intensive use of relatively abundant or cheap factor. वो चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिसकी प्रोडक्शन रिक्वायर कर रही है इंटेंसिव यूज ऑफ रिलेटिवली अबंडेंट और चीप फैक्टर, जो वहां पे अबंडेंट फैक्टर है, चीप फैक्टर है. एंड इंपोर्ट द कमोडिटी whose production requires the intensive use of nation's relatively scarce or expensive factor. जो scarce expensive factor है उसको जो है वो इंपोर्ट करना चाहिए. क्लियर है बेटा डेफिनेशन? Yes, sir.
सर काइंडली एक दफा बता दें थोड़ा सा, जी दोबारा नहीं समझ आया। जी, मैं डेफिनेशन दोबारा बोलता हूँ। अकॉर्डिंग टू द हेक्स्चर-ओहलन मॉडल, labor abundant nation will export the labor intensive commodity and import the capital intensive commodity. On the other hand, capital abundant nation will export the capital intensive commodity and import the labor intensive commodity. जिस नेशन में कैपिटल ज्यादा मिकदार में मौजूद है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन कहलाती है, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। वहां पे लेबर स्केर्स है तो उसे स्केर्स फैक्टर में जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इंपोर्ट करनी चाहिए। इसी तरह जो नेशन जहां पे लेबर ज्यादा मिकदार में मौजूद है वो लेबर अबंडेंट नेशन कहलाएगी, तो उसे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, जबकि कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी जो है वो इंपोर्ट करनी चाहिए। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जी सर जी, थैंक यू। ये हेक्स्चर-ओहलन मॉडल की सामने इलस्ट्रेशन है, डायग्राम है। लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर नेशन 2, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर नेशन 1। ये हमने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ड्रा किया है जो दोनों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ जो है वो टेंजेंट है। आप देख सकते हैं दोनों के साथ टेंजेंट है, और जहां पे ये जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट है वो इनके इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये एक हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व भी बनाया गया है जो गिवन रिसोर्सेज से अनअसेसिबल है। इधर आते हैं हम, ये ए एंड ए प्राइम जो है ये इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट है, क्योंकि नेशन 2 जो है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है एंड कमोडिटी वाइज कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, तो नेशन 2 को वाई में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, वाई को एक्सपोर्ट होना चाहिए। जब स्पेशलाइजेशन करनी है इनकम्प्लीट तो हम ए प्राइम से ये बी प्राइम पे चले गए स्पेशलाइजेशन की वाई की तरफ। इसी तरह ये इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट है नेशन 1 का। नेशन 1 इज लेबर अबंडेंट नेशन एंड कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। तो हम ए पॉइंट से जो है वो बी पॉइंट पे मूव कर गए हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो है वो मूव कर गए हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। ये हमने यहाँ पे 40 यूनिट्स जो हैं वो एक्स के एक्सपोर्ट किए नेशन 1 ने, 40 वाई इंपोर्ट किए। इसी तरह नेशन 2 ने 40 एक्स तकरीबन 40 कर रहे हैं या तकरीबन 40 कर रहे हैं, 40 एक्स एक्सपोर्ट किए हैं, 40 वाई एक्सपोर्ट किए हैं, 40 एक्स इंपोर्ट किए हैं। तो ये नया इक्विलिब्रियम ये सेंटर में आ जाएगा, ये नया इक्विलिब्रियम आपके सामने सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कम्युनिटी डिफरेंस कर्व ड्रा कर लेंगे विच इज हायर देन द प्रीवियस कम्युनिटी डिफरेंस कर्व, उससे हायर है जो ये शो कर रहा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। अगर आप मैथमेटिकली निकालना चाहें जैसे हम प्रीवियस निकालते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, प्रीवियस से हायर मतलब गेन फ्रॉम ट्रेड आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं जो कि आपको नजर आएगा। देखें भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। सर ये सेकंड जो डायग्राम है वो एक्सप्लेन कर दे दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट है ए एंड ए प्राइम, ये वाले ये इनिशियल, क्योंकि ये कम्युनिटी डिफरेंस कर्व दोनों को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट बना रहा है। यस सर। ये इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट है। नेशन 1 इज लेबर अबंडेंट नेशन, कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। सो अकॉर्डिंग टू हेक्स्चर-ओहलन मॉडल नेशन 1 मस्ट स्पेशलाइज इन एक्स कमोडिटी एंड एक्सपोर्ट एक्स कमोडिटी। तो ये एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगा, ए पॉइंट से इधर की तरफ मूव करेगा और ऑब्वियसली इधर रिलेटिव प्राइस जो है 1 हो जाएगी, इधर की तरफ मूव करेगा, बी पॉइंट पे आ गया स्पेशलाइजेशन करके। इसी तरह नेशन 2 जो है वो इसका इनिशियल प्रोडक्शन पॉइंट ए प्राइम है
Nation 2 is capital abundant nation and commodity Y is capital intensive commodity. So nation 2 Y में स्पेशलाइजेशन करेगा और इस B प्राइम पॉइंट पे आ जाएगा। अब नेशन 2 जो है वो Y के यूनिट्स एक्सपोर्ट किए और X के इंपोर्ट किए, 40 एक्सपोर्ट किए, 40 इंपोर्ट किए, इस पॉइंट पे आ गए E पॉइंट पे। इसी तरह नेशन 1 ने X के 40 एक्सपोर्ट किए, Y के 40 इंपोर्ट किए, इस पॉइंट पे E पे इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पे हमने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ड्रा कर लिया। आप देख सकते हैं हमने हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व जो है वो अचीव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यस सर। डायग्राम आप सब लोग ये बनाकर, ये पिछली डायग्रामों से थोड़ी डिफिकल्ट होगी क्योंकि दोनों नेशंस की एक ही इकट्ठी डायग्राम बन रही है इसलिए, और दूसरा अगर आप मेजर करके स्केल के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह सही बन जाएगी। डायग्राम बनाकर सब लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे आफ्टर क्लास। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने लास्ट क्लास नहीं था ली, तो मुझे थोड़ा सा ना ऑफर कर्व्स का वो थोड़ा सा कंसेप्ट बता देंगे? वीडियो लेक्चर आपने देखा है आपने? नहीं सर। वीडियो लेक्चर देख लें आप, क्योंकि अब वो ठीक। अगर मैं 40 मिनट्स वाली चीज़ जो है ना वो अब 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा ना तो समझ नहीं आएगी। ठीक है सर। ठीक है, वो आप Thank you, लेक्चर sir. देख लें एक दफ़ा, फिर भी ना समझ आए तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है सर। मैंने Thank you, sir. अपलोड किया गूगल क्लासरूम पे। Thank you, sir. ओके, ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह